أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thank you all of you. اینڈ الحمدللہ ہم اپنی بات یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ جو سلسلہ ہم نے رمضان کریم میں شروع کیا تھا، جو کہ خوبصورت سلسلہ تھا قرآن کو سمجھنے کا، اور اس کو ہم مکمل کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ جیسے باقی لوگ بھی اس کو مکمل کریں۔ سو آپ کی آسانی کے لیے ہم نے اس کو، اور چند لوگوں کی بہت ریکویسٹ کے لیے کے بعد ہم نے اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر کے ہم ریوائز کریں گے۔ ایک حصہ آج ریوائز کریں گے اور ایک حصہ اس کا ہم تھرسڈے کو ریوائز کریں گے۔ ویسے تو آئی تھنک لاسٹ ویک بھی ہم نے ریویژن کی تھی، لیکن 1 گھنٹے میں سب ریویژن کرنے کی وجہ سے بہت ہی کوئک ہو گیا تھا۔ کوئک تو آج بھی ہوگا، کوئک تھرسڈے کو بھی ہوگا، لیکن ایٹ لیسٹ ہر چیز پہ ہمیں تھوڑا تھوڑا بولنے کا موقع مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم ایسا کریں گے کہ ہمارے شروع کا جو ایک بہترین حصہ ہے قرآن کا، اس کو ہم دیکھیں گے، اور اسپیشلی گرامر کو دیکھیں گے، کیونکہ سلائڈس کی مدد سے آپ کو قرآنک ٹرانسلیشنز اور وہ پڑھنا، چیزوں کے میننگز، سنگولر پلورل، وہ تو آپ دیکھ کے بھی ریوائز کر لیتے ہو۔ پرابلم آتی ہے گرامر کے کانسیپٹس میں، تو گرامر کے کانسیپٹس کو ہم کوشش کریں گے کہ ہم بنسبت قرآن پورشن ہم گرامر پورشن کو زیادہ ٹائم دیں، تاکہ آپ کا اصل مقصد حاصل ہو۔ اور ہماری وہ سسٹرز جو ریکویسٹ کرنی تھی کہ ہمیں کسی وجہ سے ہماری کلاسز بہت ارجنٹ تھی، ہمیں پرمیشن نہیں ملی رمضان کلاسز میں آنے کی، لیکن ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی یہاں اگر ڈیڈیکیٹڈلی موجود ہیں تو وہ ان 2 دنوں میں صرف 2 گھنٹوں میں اس کو کر لیں گے، اور جو باقی لوگ ہیں وہ ان کی ریویژن اچھی ہو جائے گی، سو دیٹ ہم اس کا کوئز سنڈے کو رکھیں، اور آپ اس ریویژن کے بعد آرام سے کوئز دے سکتے ہیں۔ جن کے ہوم ورک رہتے ہیں 4 ہوم ورکس تھے اونلی، MCQs، وہ اس کو کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کا ریزلٹ کمپائل کریں۔ ایک اور کوشچن جو میرے پاس آپ کے کالجز کی طرف سے آیا ہے وہ یہ ہے کہ عید آ رہی ہے اور ہم لوگ تو چھٹیوں پہ جا رہے ہیں، تو سیریمنی کب ہوگی؟ آپ فکر بالکل نہ کریں، سیریمنی اگر چھٹیوں کے بالفرض بعد بھی ہوئی تو بھی ایسا ہی ٹائم رکھا جائے گا جس میں آپ کو انوائٹ کیا جائے، آپ کو پراپرلی انوائٹ کیا جائے گا، جو بھی 1 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کی سیریمنی ہوگی، لیکن آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ کہ آپ کے ایڈمنسٹریشن کی پرمیشن سے ہم اس طرح کی چھوٹی سی سیریمنی کریں جو بہت خوبصورت ہو، اور اس میں آپ کو سرٹیفکیٹس دیے جائیں۔ تو آپ خود اور آپ کے فرینڈس جو ہم چاہتے ہیں کہ سب سرٹیفکیٹس حاصل کریں، اور اس سرٹیفکیٹ کے بہانے قرآن سے اور ہم سے کنیکٹ کریں، اور ہمارے ساتھ مل کر اس بہترین جو ایفرٹ ہے اس کا حصہ بنیں۔ خیر، آگے چلتے ہیں، آئیے قرآن سمجھتے ہیں آسان طریقے سے۔ جو ہم نے فرسٹ ویک میں جو ایکٹیویٹیز کی تھی اس کو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ابھی، اور اس کے بعد سیکنڈ ویک، تو 2 ویکس کی ایکٹیویٹی ہم آج کریں گے، اور نیکسٹ 2 ویکس کی جو مین ایکٹیویٹیز تھی وہ ہم تھرسڈے کو دیکھیں گے۔ ویک 1 میں جو چیزیں تھیں ان کی طرف ہم سب سے پہلے جا رہے ہیں، سو میں الفلاح منزل کی جانب سے آپ 3 کالجز جن کے اسٹوڈینٹس ابھی جنہوں نے ریکویسٹ کی تھی، اور میں نے فیو اسٹوڈینٹس ہیں لیکن میں نے ان کو اسپیشلی میں ویلکم کروں گی اس کلاس کے لیے، جس میں IMCG F72 ہے، جس میں IMCG G11 ہے، اور ICG F62 ہے۔ سو انشاءاللہ آپ کے گروپس میں یہ ریکارڈنگ بھی شیئر ہو جائے گی، اور کلاس کے بعد بھی آپ نے اس ریکارڈنگ کے تھرو بھی اپنے فرینڈس کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ تھرسڈے سے پہلے اس کو سن لیں اور اس کے تھرو کام کریں۔ لیکن اٹینڈنس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ کلاس میں ہوں، کیونکہ اٹینڈنس سیو ہو رہی ہوتی ہے۔ خیر، اس وقت میں الفلاح منزل اسلامک کمیونٹی سینٹر میں موجود ہوں، آفس میں، اور یہاں یہ جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں فلور 2 پر، انشاءاللہ میں ضرور چاہوں گی کہ ان دا فیوچر آپ بھی کبھی ضرور مجھے وزٹ کریں، اور یہاں آپ کو بہت اچھا لگے گا یہ سسٹم دیکھ کر، جہاں ہر وقت قرآن کے لیے کام ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کو سسٹم بھی دکھاؤں گی، ہم گپ شپ بھی کریں گے، کافی کچھ سیکھیں گے، اور ہمارا مقصد ہے قرآن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے 24/7 اپنی لائف میں لانا۔ 24 کا کیا مطلب ہے اور 7 کا کیا مطلب ہے؟ کون بتائے گا؟ اینی آف یو کوئی بتا سکتا ہے یہ 24/7 بیسس کا کیا مطلب ہوا؟ ہم کیسے 24/7 اپنی زندگی میں اسلام کو لا سکتے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ میم دن کے 24 گھنٹے اور ہفتے 7 دن ہوتے ہیں تو ویری نائس، ویری نائس، ماشاء اللہ لائبہ، تھینک یو سو مچ۔ آج کا پہلا رسپانس آپ نے کیا۔ ایک چاکلیٹ تو بنتی ہے، وہ آپ کو ضرور کھلانی پڑے گی، ہے نا؟ تو 24، آپ کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں ایک دن میں،
और 7 दिन होते हैं हफ्ते में। यानी दीन इसलिए नहीं है कि आपने एक थोड़ी सी नमाज अदा कर ली जल्दी जल्दी, उसके बाद आप जो मर्जी करो, आपको खुली छुट्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ने लिमिटेड टाइम के लिए दुनिया में भेजा है और हम इसके लिए आंसरेबल हैं। ठीक है। तो 24/7 इस्लामिक तरीके से हम जिंदा रहें, वही बेहतरीन रास्ता है, उसी से हमें अब फलाह मिलती है, कामयाबी मिलती है। और वही दुनिया और आखिरत के लिए फायदेमंद होती है, और यकीन करें सुकून भी उसी में है। लोगों ने गलत कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए हैं और उनको लगता है इसके बगैर सुकून है। गलत फहमी में जिंदगी को जाया कर देते हैं। ठीक है। खैर, हमारे कोर्स के मकासद हैं कि कुरान जिसका हमें डर होता है कि मुश्किल है, हमें ये कोर्स बताता है कि बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। समझ के जब हम नमाज अदा करते हैं तो ही असल से अल्लाह से 5 वक्त जो मीटिंग है दिन में, उसका मकसद हासिल होता है। नमाज इफेक्टिव होती है, हमारी तबीयत पे असर करती है। हम मोहब्बत से नमाज अदा करते हैं जब हम फील करके समझ के पढ़ते हैं। और कुरान के साथ हमारा ताल्लुक बनता है जब हमें बात समझ आती है। अब कुरान इसीलिए तो पढ़ने का दिल नहीं चाहता, पता तो है नहीं अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं हम उसको। ठीक है, तिलावत बहुत अच्छी बात है, एक हर्फ पे 10 नेकियां हैं, लेकिन जब उस वक्त अल्लाह का मैसेज ही समझ नहीं आएगा, उसको पढ़ना कोई समझदारी तो नहीं है कि बगैर समझे आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप समझने पे कोशिश नहीं कर रहे, इसलिए तो ताल्लुक नहीं बनता, दिल नहीं चाहता पढ़ने का, है ना। तो इसके जरिए से ताल्लुक बनेगा इंशाल्लाह, नेक अमाल की हमें मोटिवेशन मिलती है, समझ आती है, हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं फिर। और अरबी बोलचाल के कुछ जुमले भी हैं बहुत मज़े मज़े के जो हम सीखते हैं, तो ये 6 अचीव मकसद करते हैं हम। और अभी हम देखते हैं तावुज़ और सूरत फातिहा को। आप कहेंगे कितनी सिंपल सी चीज़ है, ये तो हमें पहले से आती है ना। लेकिन यकीन करें, मैंने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हर जगह सीखा, लेकिन वो चीज़ जो इस कोर्स के ज़रिए से सीखी वो कहीं और नहीं सीखी। बेशक आज भी हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम एक नज़र डालते जाएंगे इन चीज़ों पर। तो पहले 4 लेसन्स में सिर्फ तआवुज़ और सूरतुल फातिहा इस कोर्स में कवर हुई है। ठीक है, जिसको हम अभी थोड़ी सी देर में मुकम्मल करेंगे। तो ये कुरान की पहली सूरत है जो मुकम्मल सूरत, जो कि अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई जिब्रील सलाम के थ्रू। और हमें इसको हर नमाज की हर रकत में पढ़ने का हुक्म दिया गया है। दिन में कई बार हम इसको पढ़ते हैं, आपको पता है, क्योंकि इसके बगैर नमाज ही मुकम्मल नहीं होती। और ये अल्फाज कुरान में 9,000 बार रिपीट हुए हैं। अगर आप सिर्फ सूरतुल फातिहा को समझ लें तो आप कुरान के 9,000 लफ्ज सीखते हैं। लेकिन अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग, अरबों की तरह समझें, गौर करें वो लफ्ज कहाँ से आया है, ग्रामर में कहाँ स्टैंड करता है, इन चीज़ों में टाइम लगेगा। ठीक है। ऑल राइट। तो बाकी आप यहाँ देख रहे हैं, ये सूरतुल फातिहा आपके सामने है। और सबसे पहले आपको तावुज़ नजर आ रहा है, फिर बिस्मिल्लाह, तस्मिया, और उसके बाद बाकी आयत नजर आ रही हैं। अच्छा, एक मजे की बात यह है, सूरतुल फातिहा से हमने 12 ऐसी हैबिट्स सीखी हैं जो इंसान को कामयाब बनाती हैं, अल्लाह ताला ने सिखाई हैं। पहली आदत हमें कहाँ से मिल रही है? तावुज़ से। इनके तराजिम तो आप खुद ही याद कर लेंगे, जाहिर है। मैं पनाह में आता हूँ बिल्लाहि, अल्लाह की, मिन से, अश शैतान अर्रजीम जो मरदूद है ना। लेकिन इसके साथ ये तो अल्लाह ने सिखा दिया कि हमेशा इस तरह से मुझसे मेरी हिफाजत की दुआ मांगा करो, क्योंकि शैतान हर वक्त तुम्हारे साथ है। लेकिन अल्लाह ने ये भी सिखा दिया कि ये, अगर ये आदत तुम बनाओगे तो ही तुम कामयाब होगे। कामयाब इंसान की ये पहली आदत होनी चाहिए कि उसे पता हो मैं हर वक्त हालत जंग में हूँ, और मुझे बचना कैसे है? अल्लाह की मदद हासिल करनी है ना। तो वो जरा माइक ऑन करके बताएं कि पहली आदत क्या है, क्या लिखी हुई है यहाँ। कि वो अल्लाह की पनाह तलब करते हैं। वो यानी वो कामयाब लोग कौन होते हैं जो अल्लाह की पनाह तलब करते हैं, क्योंकि उन कामयाब लोगों को ये पता होता है कि कोई और हमें हर हिफाजत नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मी नाम से अल्लाह ही, अल्लाह के, अर्रहमान जो बहुत मेहरबान, अर्रहीम रहम करने वाला है। इसके 2 हिस्से करके हम आदतें निकाल रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। इससे कामयाब इंसान की आदत नंबर 2 पता चलती है, पढ़ के बताइए। कि वो हर काम करने से पहले अल्लाह ताला का हर नाम लेते हैं। काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़। वेरी नाइस, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। होगा क्या? अल्लाह का के नाम में ही इतनी बरकत है। आप अल्लाह को पुकारें कि अल्लाह मैं ये काम करने जा रही हूँ और मुझे इस काम में आपकी मदद चाहिए, आपकी मदद के बगैर तो कुछ अच्छा नहीं होता। तो अल्लाह का नाम लें अगर आप कामयाब इंसान होना चाहते हैं। ये हो गई आदत नंबर 2। तीसरी आदत है जी, जो बहुत, रहमान का मतलब है शदीद रहम करने वाला,
बहुत ज्यादा। और रहीम का मतलब है मुसलसल रहम करने वाला। सो जो हमारे बारे में हमारे ऊपर शदीद रहम कर रहा है और हर वक्त मुसलसल कर रहा है, उसकी रहमत रुक ही नहीं रही, बेतहाशा है, क्या उसके साथ भी हमें कोई नेगेटिव थिंकिंग रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझे ये क्यों नहीं दिया? अल्लाह के बारे में नेगेटिव थिंकिंग, बुरा गुमान कभी नहीं। तो आदत नंबर 3 हमें कौन सी पता चल रही है? अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा अच्छा गुमान रखें। गुमान। वेरी नाइस। अल्लाह के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा अच्छा गुमान रखें। उसके बाद हम जब आते हैं अल्हम्दु, तमाम तारीफें और शुक्र लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, रब्बी जो रब है, अल आलमीन, तमाम जहानों का। तो इसमें भी दो आदतें हम निकालते हैं। पहली यहाँ से, अल्हम्दुलिल्लाहि, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए। हम कहते हैं वो कितना खूबसूरत है, उसके पास दौलत कितनी है, उसके पास क्या मर्तबा है, डेजिग्नेशन, इतनी बड़ी पोजीशन अल्लाह ने दी, उसका घर इतना बड़ा है, उसके उसके पास लैम्बोर्गिनी है, उसके पास सबसे बेहतरीन आईफोन है। हम तारीफें करने के कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, दुनिया से, लोगों से खुश हो रहे होते हैं। हाँ, याद रखा करें, हर चीज के लिए तारीफ अल्लाह की बनती है। हर चीज अल्लाह ने बनाई है, और अगर किसी को अल्लाह ने के पास कोई चीज है, तो वो भी उसे अल्लाह ने दी है। तो असल में तारीफ का हकदार सिर्फ अल्लाह है। तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है। वही तारीफ के काबिल है, थैंक्स भी उसी को कहें। ये सच्ची और सही बात है ना? कितनी प्यारी बात है। तो यहां से आपने आदत नंबर 4 सीखी, पढ़ के बताइए। अल्लाह के एहसानात को याद करते हुए बार बार शुक्र करना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब आप आते हैं रब्बिल आलमीन। रब है तमाम आलमीन का, आलम जितने भी हैं, इंसानों का जहान, फरिश्तों की मामलात, जिन्नात, वो किस तरह, वो भी फैमिलीज में रहते हैं, जानवर हैं, उनका अपना एक लाइफ स्टाइल है। तो जितनी मखलूकात अल्लाह ने बनाई हैं, जितना कुछ, उन सब का अकेला पालने वाला अल्लाह है। सोचें, इमेजिन, कौन कर सकता है ऐसा? इतना बड़ा है वो। एक एक चीज को सोचें, कितने इंसान कितने मुल्कों में रहते हैं, कितने जानवर, कितने कोई, सबको, और मखलूकात, जिन्नात हैं, फरिश्ते हैं, एनिमल्स, कैसे कैसे, और कितनी चीजें तो शायद हमें मालूम भी ना हो, मखलूकात। सबका रब वो है। कितना बड़ा रब है। अब उसके रब के बड़े होने का और इस वैल्यू का पता तब चलेगा जब हम जहानों के बारे में इस रिसर्च करेंगे। पता चलेगा अच्छा जहानों में है क्या क्या, समंदर हैं तो कैसे हैं। इनको समझने के लिए फिर हम साइंस में डिवाइड करते हैं, कभी फिजिक्स की फॉर्म में, कभी केमिस्ट्री, कभी बायो, कभी कुछ कुछ, कभी कुछ पढ़ते हैं। डिफरेंट एस्पेक्ट्स से जहान को जानते हैं ताकि हम अल्लाह तक पहुंचे, अल्लाह को ज्यादा से ज्यादा समझें, है ना? तो आपको फिर क्या करना होगा? कामयाब आदत, इंसान की आदत नंबर 5 क्या होगी? खूब इल्म हासिल कीजिए ताकि दिल से अल्लाह की तारीफ निकले। यस। तो आप जितना जहानों को जानेंगे, जितना दुनिया, हर चीज के बारे में अपना इल्म बढ़ाएंगे, साथ साथ सोचते जाएं कि ये जो चीज ऐसे है, ये कैसे बन गई? अल्लाह ने बनाई है। तो जिसने इतना कुछ ऐसा ऐसा बना दिया, वो रब कितना कितना बड़ा है। फिर सही दिल से तारीफ निकलती है अल्लाह की कि वो वाकई तारीफ के काबिल है। सुभान अल्लाह। उसके बाद आती है अगली आयत, अर रहमान अर रहीम, बहुत ज्यादा मेहरबान और बहुत रहम करने वाला। ये हम बिस्मिल्लाह में भी ये अल्फाज हमने पढ़े हैं। तो यहाँ मुझे बता दीजिए आदत नंबर 6। दूसरों पर रहम कीजिए। दूसरों पर रहम कीजिए। जब हम ये चाहते हैं क़यामत के दिन और दुनिया में भी, हमारा, हम जो भी करते हो ना, हम, गलतियां भी हो जाती हैं बहुत सारी, लेकिन हम अल्लाह से एक्सपेक्ट करते हैं वो हम पे रहम ही करे, है ना? तो अगर रब से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इंसान होने के नाते हमारे ऊपर तो ज्यादा बनता है कि हम भी दूसरों के साथ काइंड रहा करें, दूसरों पे रहम किया करें। ठीक है? तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ ली। अगली आयत है मालिकी, मालिक है यौमी, दिन का, अद्दीन, बदले के। ठीक है ना? ये वाहिद, जमा, ये सब चीजें मैं आपको ये वाली स्लाइड्स भेजूंगी, आप इनको जरूर देख लीजिएगा। वैसे आपके पास ग्रुप में ये मौजूद है स्लाइड्स, ये वही वाली स्लाइड्स हैं, मैं एक साथ दोबारा भेज दूंगी, ठीक है? सो आप इनको दोहरा सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और अगर हम ये कहते हैं कि वो बदले के दिन का मालिक है ना? वैसे तो दुनिया का मालिक भी वही है, लेकिन उस दिन, अभी तो दुनिया में उसने हमें इजाजत दी है कि तुम अपनी मर्जी कर लो, है ना कहीं इजाजत होती है हमें। लेकिन उस दिन सारी इजाजतें अल्लाह ताला ले लेंगे वापस। सिर्फ वो मालिक होगा, जिसको चाहेगा कामयाब करेगा, जिसको चाहेगा नाकाम। जन्नत जहन्नुम उसकी मर्जी से होगा, इंसान के अमल के मुताबिक, ऑफ कोर्स वो इंसाफ भी करता है। ठीक है? तो आदत नंबर 7 बताइए। कोशिश कोशिश हो हो कि कि पढ़ लें, आखिरत पढ़ के लें, पढ़ सामने लें। रख किया जाए और वक्त जाया ना किया जाए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, माशाल्लाह।
اس کے بعد آتا ہے ایاکا، صرف تیری یا تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور صرف تیری یا صرف تجھ سے یا تجھ سے ہی، ایک ہی بات ہے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ دو سورۃ الفاتحہ میں یہ دو باتیں ہم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اللہ کی تعریف کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ تعریف کے قابل ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، ہم اللہ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ جیسے ہی آیت نمبر 5 ہم ریسائٹ کرتے ہیں، ہم اللہ سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، کانورسیشن ڈائریکٹ۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی نہیں، صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں اور کسی کی نہیں۔ کسی کی کیا اوقات کہ کوئی ہماری مدد کر سکے؟ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے عامل بابا، بنگالی بابا آپ کے مسئلے حل کرے گا۔ تو یہ مزہ کا خیز بات ہے نا؟ تو اس چیز کا اظہار بڑا ضروری ہے۔ سو یہ دیکھیں، یہ الفاظ ایا اور کا کس طرح سے ہیں، کس طرح سے ٹکڑے جڑ کے لفظ بن رہے ہیں، معنی کہاں سے آ رہے ہیں، یہ ساری سلائیڈز میں آپ کی ڈیٹیل موجود ہے۔ تو قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا اور کسی کام کے لیے نہیں کیا، باقی سب ضائع ہو رہا ہے نا؟ تو مجھے ذرا بتائیے، یہاں سے ایاک نعبدو سے آپ نے عادت نمبر 8 کون سی سیکھی ہے؟ ہر کام میں نیت ہو عبادت کی۔ ویری نائس، ویری نائس، ماشاء اللہ۔ اور اسی طرح آپ نے عادت نمبر 9 سیکھی ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے۔ ہر کام میں اللہ سے مدد مانگنا۔ ویری نائس۔ تو یہ ہم ایکچولی نوٹ کرتے جائیں، یہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ 9 عادتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھا دی ہیں یہاں تک۔ اس کے بعد آتے ہیں آیت نمبر 6 پر، اہدنا ہمیں ہدایت دے، الصراط راستے کی، اور مستقیم سیدھے۔ تو ہدایت، ہدن ہدایت، گائیڈنس، کہ اللہ تو ہمیں گائیڈ کر۔ سیدھا رستہ سے مراد اے اللہ سیدھا رستہ یعنی صحیح رستہ، درست رستہ، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ رستہ ہمیں چاہیے جو ہمیں اصل کامیابی دے، دنیا میں تو دے، اور آف کورس ہمیں دنیا میں بھی سکون چاہیے سب، اور اصل کامیابی ہمیں پرماننٹ لائف میں چاہیے۔ اے اللہ یہ تو چھوٹی سی زندگی ہے، ایک وقت تھا ہم ننے ننے بچے تھے، پھر تھوڑے بڑے ہوئے، آپ ٹین ایج میں آ کے آپ کالج میں ہیں، یونیورسٹیز جائیں گے، جابس کریں گے، آخرکار بوڑھے ہو جائیں گے، آخرکار دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو یہ دنیا بھی ہمیں اچھی چاہیے انشاءاللہ، عافیت سے چاہیے، لیکن اس لیے چاہیے کہ اس میں ہم ایسے ایسے کام کریں کہ ہماری پرماننٹ لائف اچھی ہو۔ یہ لائف تو ایک دن ختم ہو جائے گی، کسی کی جلدی، کسی کی بچپن میں، کسی کی جوانی میں، کسی کے بڑھاپے میں، مر سب نے جانا ہے۔ آج تک کوئی زندہ نہیں رہا ہم میں سے، نہ کوئی رہے گا۔ لیکن اے اللہ جو پرماننٹ لائف شروع ہوگی، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، ہم تجھ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ تو ہمیں گائیڈ کر، ہمیں ہدایت دے اس رستے کی، کہ سیدھا ہمیں اس رستے پر چلنا ہے، تاکہ کیونکہ وہ پرماننٹ لائف کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیں اس کی کامیابی چاہیے، ہم اس میں آگ برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں سکون چاہیے، اس میں ہماری مرضی ہو ہر چیز میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے، تو یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتے ہیں۔ اسلام میں، دین میں داخل ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے۔ آپ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ پھر ایفرٹ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ بس مسلمان ہو گئے اب جو مرضی کرنا ہے، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، اب ہمیں پروف کرنا ہے، قرآن کو امپلیمنٹ کرنا ہے، سمجھنا ہے، بہت کچھ کرنا ہے، تب ہم حقدار ہوں گے جنت کے۔ تو عادت نمبر 10 بتائیے۔ ہر کام میں اللہ سے ہدایت طلب کرنی۔ دیٹس ہر رائٹ، کام میں اللہ سے ہدایت طلب کرنا۔ ویری نائس، ویری نائس۔ اور آخری آیت میں ہم پھر جو ہدایت ہم نے مانگی ہے نا، ہم ایکسپلین کر کے اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں، ہم نے کہا نا سیدھا رستہ، کون سے لوگوں کے رستے پہ چلا اور کون سے پہ نہ چلا؟ تو یہاں ہم کہتے ہیں صراط راستہ، الذین، ان لوگوں کا انعام کا انعام کیا تو نے علیہم ان پر، یعنی وہ کون ہے؟ قرآن سے ایکسپرٹس نے نکالے ہیں کہ ایک تو نبی ہیں، ایک صدیقین سچے لوگ، شہداء صالحین یعنی نیک لوگ، ان کے رستے پہ چلنا ہوگا، نبیوں کے طریقہ وہ کیا کیا کام کرتے رہے وہ اپنانا ہوگا۔ یہ طریقہ ہے جو ہمیں انعام والے لوگوں میں شامل کرے گا، کیونکہ ان پہ اللہ نے ہمیشہ انعام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں آپ کو عادت نمبر 11 کون سی پتہ چلی؟ بول کے بتائیے ذرا۔ ہمیشہ جی، اچھے ہمیشہ اچھے، اچھا پورا یہاں پہ ورڈ نہیں آ رہا، چلے میں کریکٹ کر دوں گی، ہمیں ہمیشہ اچھے رول ماڈل بنانے چاہیے۔ مثال، رول ماڈل کون ہوتے ہیں؟ جن کو ہم فالو کرتے ہیں نا، ہم ان جیسے بننا چاہتے ہیں۔ تو دنیا میں اگر ہم کسی سے امپریس ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر تو اس کے کام ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کے مطابق ہیں، پھر تو ہمیں فالو کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں پھر ان میں فالو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اچھے اچھے رول ماڈل بنائیں۔ سب سے بہترین رول ماڈل اللہ کے نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے؟ اوکے، غیر المغضوبی، نہ غضب کیا گیا، علیہم ان پر، یعنی اے اللہ انعام والوں کے رستے پہ چلا، مغضوب جن پر تو غصہ ہوا ان کے رستے پر نہیں،
ठीक है। गैर का मतलब होता है नहीं, और ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, आप आराम से देखिएगा। वला और ना अद्वालीन, जो गुमराह हुए। गुमराह कौन होते हैं? जिनका रास्ता गुम हो जाए उनको कहते हैं गुमराह, इसका राह ही गुम हो गया। ज़ाल, ज़ालन, ज़ालिन, ये वाहिद होता है। अगर ज्यादा लोग गुमराह हो तो ज़ालून और ज़ालिन से जमा बनती है। तो जो जानते हैं चीजों को, अमल नहीं करते, अल्लाह उन पे गुस्से होता है, वो मगदूब हैं। और जो जानते ही नहीं और जानने जानने की कोशिश भी नहीं करते, जाने बगैर अमल करते हैं, वो गुमराह हैं, ज़ालिन हैं। तो दोनों कैटेगरीज नुकसान में है। ठीक है। तो हम अल्लाह से यही दुआ मांग रहे हैं कि वो हमें इनाम वाले लोगों पे के रास्ते पे चलाए। तो सबसे आखिरी आदत नंबर 12 कौन सी है? बुरे मॉडल नमूने मिसालें से दूर भागना और दुआ करना कि अल्लाह इनकी पैरवी से बचाए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो सूरत फातिहा पढ़ते वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ये जरा गौर करें, हम जिस नमाज में कितनी जल्दी जल्दी में पढ़ के और नमाज से फारिग हो जाते हैं ना, लेकिन अल्लाह ताला इतने फोकस से मोहब्बत से सुनते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान डिवाइड किया हुआ है, आधी मेरी है आधी मेरे बंदे की। मैं अपने बंदे को हर वो चीज देता हूँ जो वो मुझसे मांगे। कितनी बेहतरीन बात है ये। अल्लाह फरमाते हैं, जब मेरा बंदा कहता है ना कि सारी तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है, तो अल्लाह जवाब देते हैं कि मेरा देखो, मेरा बंदा मेरी हमद कर रहा है। फिर जब बंदा कहता है रहमान है वो मेरा रब, रहीम है, तो अल्लाह फरमाते हैं असना अलैया आबिदी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की है। ये भी तारीफ का अगला लेवल है। फिर जब मेरा बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, मेरा अल्लाह कयामत के दिन का मालिक है, तो अल्लाह फरमाते हैं मेरा बंदे ने मेरी शान, मेरी बुजुर्गी बयान की है। अल्लाह ताला रिस्पॉन्स कर रहे हैं हर सेंटेंस के बाद, स्टेटमेंट के बाद। बंदा कहते हैं, "ऐ अल्लाह, मैं सिर्फ तेरी इबादत करता हूँ, सिर्फ तुझसे मदद मांगता हूँ और किसी से नहीं, शिरक बिल्कुल नहीं करता।" अल्लाह फरमाते हैं, अब हुई ना बात, अब मामलात मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आ गए, अब हमारी आपस की बात हो गई, अब कोई तीसरा नहीं है बीच में। सुभान अल्लाह। फिर बंदा कहता है कि अल्लाह, तुम हमें सीधे रास्ते पर चला, इनाम जिन पे तू इनाम करता है, रिवॉर्ड्स देता है, उनके रास्ते पे, उन लोगों के रास्ते पे ना चला जो मगदूब और जालिन हैं, जिन पे तो गुस्सा होता है, जो गुमराह हुए। तो अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बंदे के लिए हर वो चीज़ है जो वो मुझसे मांगेगा, वो उसे मिलेगा। कितनी प्यारी बात है। और हम अगर सूरह फातिहा में दिल से पढ़ ही ना रहे हो तो फिर हमें कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा? हम तो बस जल्दी जल्दी में अदा करते हैं। तो ये सोचें, ये बिल्कुल सच्ची बात है। सिर्फ अल्लाह ताला हमारी आंखों से हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन एक्चुअली हमारे साथ होते हैं, सब मालूम होता है। अभी भी अल्लाह को मालूम है आप में से कितने लोग क्लास में हैं और वो किस तरह सीख रहे हैं। ठीक है। सूरतुल फातिहा का खुलासा क्या है, बताइए जरा, सीधे बताइए सूरतुल रास्ते फातिहा का खुलासा। सीधे रास्ते सीधे की दुआ। रास्ते। सीधे रास्ते की दुआ, दैट्स राइट, दैट्स राइट, माशाल्लाह। तो ये 12 आदतें आपने सीख ली हैं, ये आपको इस तरह से स्लाइड्स मिल जाएंगी, आप इनको दोहरा सकते हैं और इनको असल में अपनी जिंदगी में लाना है। अब हम चलते हैं जनाब जल्दी से अपने अगले 3 लेसन्स को, उनको तो बहुत ही क्विकली हम देखेंगे। 12 आदात की वजह से मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया है, एक्चुअली हमें ज़्यादा, इससे ज़्यादा फोकस हमें ग्रामर पे करना है। और 4 बजे हम फ्री भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो सेकेंड वीक में माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स, हमने जो स्टडी किया था आप देख सकते हैं। यस, सूरह फातिहा तो हो गया ना, अभी थोड़ी देर पहले 12 आदात सीखी। फिर ये हमारे 4 लेसन्स थे सूरह फातिहा तक। फिर हमने 3 और लेसन्स पढ़े थे, लेसन 5, 6, 7, उसमें अजान, इकामत, वुजू और रुकू सुजूद थे। बस आज हम इतना ही देखेंगे, उसके बाद हम ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। तो अजान खास वक्तों में ऐलान होता है, दावत होती है कि अल्लाह ताला के लिए आ जाओ अपने काम छोड़कर, उसको अजान कहते हैं। ये अजान के अल्फाज हैं, सबसे पहले अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, इसको 4 बार दोहराया जाता है। फिर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, इसको 2 बार ये गवाही, ये हमें कहा जाता है कि गवाह बनो इस बात के, इस बात को एक्नॉलेज करो, दूसरों को बताओ। फिर कौन सी गवाही आती है? अशहदु अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद रसूल हैं अल्लाह के, 2 बार। फिर कहा जाता है हय्या अल सलाह, 2 बार, आओ नमाज की तरफ। फिर 2 बार हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, 2 बार। यानी तुम्हें कामयाबी चाहिए ना, आपको मुझे सबको चाहिए, कामयाबी चाहिए तो नमाज की तरफ आओ, ये मतलब है। फिर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये खूबसूरत अल्फाज आते हैं, राइट। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ, ये सारी डिटेल्स मौजूद है इसके बारे में। अगर आपने, आप ऑफ कोर्स जब आपका दिल चाहे आप आराम से स्लाइड्स, एक एक स्लाइड को देखिएगा। अभी तो हम रिव्यू कर रहे हैं ना, तो बस हमने बारीक बारीक चीज़ों को अभी डिस्कस नहीं करना, वरना फिर बहुत टाइम लगता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा।
اس کے بعد یہ تھا ہمارا لیسن 5۔ لیسن 6 میں ہم نے دیکھا کہ فجر کی اذان میں جو مؤذن صاحب ہے نا وہ یہ بھی کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ الصلاۃ نماز خیر بہتر ہے من النوم، من سے، النوم نیند کو کہتے ہیں۔ تو جو نیند ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، نیند بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس وقت ٹائم سے سو ٹائم سے اٹھو، یہ تمہاری صحت کے لیے بھی اچھا ہے، یہی اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت تمہاری نیند بہتر نہیں ہے، وہ وقت جاگنے کا ہے، اس ٹائم اٹھو اور اللہ کی عبادت کرو، نماز ادا کرو، اور اس سے پہلے تہجد ادا کرو تو کیا ہی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اسمائل کریں، اسمائل کریں، آپ سب لوگ بور تو نہیں ہو رہے بہت زیادہ؟ نو میں اوکے، چلے مان لیتی ہوں، اچھی بات ہے۔ اللہ کے قرآن کو سمجھنا تو انجوائے کر کے سمجھنا چاہیے، بور ہو کے وہ کیسی محبت ہے؟ ہم اللہ سے کیا کہیں گے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں لیکن آپ کے قرآن پڑھنے میں ہم بور ہوتے تھے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ محبت ہوتی ہے تو انسان دل سے وہ کام کرتا ہے، تو اسی لیے مسکرائیے، آپ کو یاد کرایا جاتا ہے۔ جب لوگ مسجد میں چلے جاتے ہیں نا نماز کے لیے، تو پھر جیسے ہی امام صاحب ریڈی ہوتے ہیں، نماز شروع کرانے لگتے ہیں، تو مسجد کے اندر کے لوگوں کے لیے اعلان کرتے ہیں، اس کو اقامت کہتے ہیں۔ تو امام صاحب کہتے ہیں قد قامت الصلاح، قد البتہ یا تحقیق، اس کا کوئی بھی میننگ آپ کر سکتے ہیں، قامت کھڑی ہو گئی، الصلاۃ نماز، انہیں اعلان کرتے ہیں کہ مسجد والوں نماز کھڑی ہو گئی ہے، گیٹ ریڈی۔ تو پیچھے والی صفوں پہ جلدی جلدی سب آ کے نماز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پھر نماز شروع ہوتی ہے۔ تو یہ اذان اور اقامت یہ آپ نے ابھی دیکھ لی ہے۔ اسمائل کیجیے پھر سے اور ہم آگے چلتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم نے وضو کی دعا دیکھی تھی، سب سے پہلے جب وضو سے پہلے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اور پھر اس کے بعد یہ جو نیچے کی سٹیٹمنٹس ہیں یہ وضو پرفارم کرنے کے بعد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نام سے اللہ کے میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک، لا نہیں، شریک کوئی پارٹنر، لہو اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ایک تو پہلے کہا جا رہا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کہا جا رہا ہے وہ اکیلا ہے، پھر کہا جا رہا ہے اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا مطلب اللہ کی وحدانیت، ونس آف اللہ پہ بار بار بات ہو رہی ہے نا؟ پھر نبی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ، اللہ کے بندے ہیں، اور رسول، اور اس کے رسول ہیں، بہت ہی کلیئر ہو گیا۔ پھر ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں۔ توبہ کے لیے شرائط کیا ہیں یہ آپ کو اس سلائڈ پہ مل رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بہت ہی سمپل۔ پھر آپ کہتے ہیں اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں، تو متطہرین توبہ کرنے والوں میں، پاکیزگی، متطہرین پاک صاف کر رہنے والے، پاکی ہر چیز کی پاکی اس میں آ جاتی ہے، انٹرنل، آپ جسمانی طور پہ، باہر، ہر چیز۔ اور پھر یہاں پر آ رہا ہے جناب وضو کے بعد کی دعا کی فضیلت۔ اگر آپ اچھے سے وضو پرفارم کرتے ہیں اور یہ دعا ادا کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے جب آپ جائیں گے، وہ جب دن ہوگا فائنل ڈے، تو جنت کے 8 دروازے ہیں، سارے اس شخص کے لیے کھول دیے جائیں گے جو اچھے سے وضو کر کے یہ دعا پڑھتا تھا، سمجھ کے دل سے۔ کتنی بڑی بات ہے، پروٹوکول سے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کسی کو لیے ایک دروازہ ہی کھل جائے تو بڑی بات ہے، اس دن اس کا پروٹوکول ہوگا کہ آپ کے لیے تو بھئی آپ موسٹ ویلکم ہیں، آپ تو وارم ویلکم کیا جا رہا ہے آپ کو، کتنی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے؟ پاکیزگی اتنی امپورٹنٹ ہے اللہ کے نزدیک۔ اسمائل کیجئے۔ اب ہم چلتے ہیں لاسٹ پارٹ آج کا لیسن 7، اور اس میں رکوع اور سجود کی بات ہوگی۔ یہ سب سے پہلے والی لائن ہے سبحان ربی العظیم، جب آپ رکوع میں جاتے ہیں 3 بار کہتے ہیں، پھر رکوع سے واپس آتے آتے آپ بولتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر سیدھے کھڑے ہو کر ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد یہ جو گرین دعا ہے نا، یہ ہمیں سے بہت ساروں کو نہیں آتی، لیکن سیکھ لے، اچھی بات ہے۔ ہمارے نبی اللہ کی اتنی تعریف کرتے تھے، کہتے تھے اللہ میں تیری اور تعریف کرنا چاہتا ہوں اور زیادہ، اس لیے وہ یہ دعا بھی پڑھتے تھے، تو مجھے بھی بہت پیاری لگی، ہم سب کو یہ پڑھنی چاہیے، میں بھی پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ مجھے یاد رہے۔ پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار ہے۔ تو جب ہم رکوع میں جاتے ہیں نا، کون سی 3 باتیں کرتے ہیں؟ پہلی بات، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، سبحان۔ دوسری بات، وہ رب ہے پالنے والا ساری دنیا کائنات کا۔ تیسری بات، ربی، میرا رب ہے، اس میں محبت ہے کہ وہ میرا ہے، ہم اپنے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں نا رکوع میں، اس کو اپنا کہتے ہیں، تو میرا ہے میرے اللہ۔ پھر العظیم کا مطلب کیا ہے آپ بتائیے؟ عظمت عظمت والا عظمت عظمت والا۔ والا تو یہ 4 باتیں، رکوع اتنی دیر ضرور کیا کریں کہ یہ 4 باتیں فیل کر کے پھر اٹھیں، اتنی جلدی نہیں ہونی چاہیے ہمیں، ہم اللہ سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، کس بات کی جلدی؟ تو یہ 4 باتیں ذہن میں لانی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر ہم کہتے ہیں اے اللہ دیکھ میں نے رکوع میں تیری تعریف کی ہے، تو اس کو سنتا ہے نا جو تیری تعریف کرتا ہے، اس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں، ہے نا؟ اور پھر سیدھے کھڑے ہو کے ہم کہتے ہیں اے ہمارے رب
तेरे लिए तो हर तरह की तारीफ है, देख मैं तेरी तारीफ कर रहा हूँ। मतलब ये एक तारीफ का अंदाज है, एक मुकालमा, एक डायलॉग, एक कन्वर्सेशन हो रही होती है उस वक्त अल्लाह से। कितनी फील करने की बातें हैं ये, लेकिन हमें समझ ही नहीं आती, है ना। तो इन सब लफ्जों को आप यहाँ से याद कीजिएगा। फिर अल्लाह के नबी यहाँ पे और तारीफ करना चाहते थे, तो वो क्या फरमाते थे? "ए अल्लाह, मैं तेरी इतनी तारीफ करना चाहता हूँ कि मैं आसमानों को भरने के बराबर तेरी तारीफ करना चाहता हूँ। पूरे आसमान, 7 आसमान तारीफ से भर दिए जाएं, जमीन को भर दिया जाए, आसमानों और जमीन के दरमियान जो कुछ है मेरे अल्लाह उसको तारीफ से भर दे। मैं इतनी तेरी तारीफ करना चाहता हूँ। ए अल्लाह, इसके अलावा भी जो कुछ तू चाहे उसको भी भर दे, मैं तेरी इतनी तारीफ करना चाहता हूँ। कितनी प्यारी बात है ये। तो हमें भी ऑफ कोर्स इतने खूबसूरत अंदाज में अल्लाह की तारीफ करनी चाहिए। तो खैर, ये डिटेल्स आप लोग आराम से स्टडी कीजिएगा। फिर हम सजदे में जाकर 4 बातें करते हैं। उन 4 बातों में से पहली बात कौन सी है? कि जिसके आगे मैं सजदा रेज हूं वो पाक है, परफेक्ट, परफेक्शनिस्ट, है ना। वो रब है सबका पालने वाला, वो मेरा रब है। ये तीसरी बात। और चौथी बात क्या है? कि वो सबसे बुलंद है। ये 4 बातें आप सजदे में सोचें, फिर सजदे से उठें। ठीक है, सुभान अल्लाह। तो ये हो गया जनाब हमारा। और ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि सुबहाना रब्बी वो अल्फाज हैं जो नमाज में हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं, और 200 से ज़ायद बार रोज़ अगर हम नमाज बाकायदा अदा कर रहे हैं, और करनी भी चाहिए। मुसलमान के लिए तो ज़रूरी है बहुत, मतलब फ़र्ज़ है, ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना। सबसे पहले सवाल ही जो है वो नमाज के बारे में होगा कि अल्लाह ताला तुमसे मुलाकात करना चाह रहे थे और तुमने की या नहीं की। ठीक है। तो खैर, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आते हैं अपने ग्रामर के हिस्से की तरफ। अभी तक जो चीज़ हमने पढ़ी है उसके हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से बताइए मुझे। एनी क्वेश्चन? कुछ जल्दी से कुछ कहना चाहें आप? कुछ भी नहीं कहना? कॉलेज में तो हम इतनी बातें करते हैं जब मैं आपके कॉलेज आती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सब समझ आ गया तकरीबन, और इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छे से समझ आएगा। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। थैंक यू माय डियर, थैंक यू एवरीवन जो जो क्लास में हैं। अब हम चलते हैं ग्रामर पे, तो आप गहरी सांस ले लीजिए, रिफ्रेश हो जाएं। ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई क्लास में है जिसने आज पहली दफा कुरान की हमारे साथ क्लास ली है? हैंड रेज करे जरा। जिसने इससे पहले कोई क्लास नहीं ली है कुरान की हमारे साथ कॉलेज में भी। इज देयर एनी पर्सन? ऐसा नहीं है कोई भी? ठीक है, ऑल राइट। अच्छा जी, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आई नो आपको सारे आते हैं, सिर्फ एक नज़र हम डालेंगे और तकरीबन 20 मिनट्स, 22 मिनट्स रहते हैं, उसके बाद क्लास एंड हो जाएगी। तो इस ये कोर्स आपके लिए ग्रामर आसान बना रहा है। ये वो बोर वाला अंदाज नहीं है इंग्लिश उर्दू का जिसमें हम बोर हो जाते थे। टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, यानी टोटली फिजिकली इंटरेक्ट करके इंटरेस्टिंग वे में पूरा फोकस से जब आप बात को सुनेंगे, और रूल्स रेगुलेशंस जो इसके रूल्स बताए जा रहे हैं, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से मिलकर, और ये सब इशारों से करेंगे, तो आपके लिए ग्रामर इंतहाई आसान है। ये चैलेंज किया जा रहा है। लेकिन अगर आप इनमें से कुछ एक्टिविटीज नहीं कर रहे, सुन कुछ और रहे हैं, ध्यान कहीं और है, हाथों से प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो फिर आप कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकती हैं। फिर आपका अपना कसूर होगा क्योंकि आपने रूल ही नहीं फॉलो किए। इसलिए रूल्स फॉलो करने हैं, आप चाहे जहां भी हैं इस टाइम। तो आपने क्या क्या करना है जरा बोल के बताएं। सुनिए, बोलें जरा जल्दी से, सीक्वेंस में बोलना है। टर्न ऑन योर माइक। सुनिए, 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 देखिए, 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 बोलिए, देखिए, सॉरी सॉरी, बोलिए, सुनिए, देखिए, सोचिए, 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 बोलिए, बोलिए, बताइए। बताइए, बताइए मतलब हाथों के इशारों से, शो इट। ठीक है। और दिल से कीजिए, दिल से कीजिए, और सब मिल मिलकर कीजिए। मिलकर, सब मिलकर। वेरी नाइस। ये सब चीजें अगर आप कर रहे हैं तो ग्रामर आपके लिए यूं है जैसे आप कोई बच्चा गेम खेल रहा होता है। यकीन करें। और 10 11 12 साल के बच्चे ये कोर्स कर रहे हैं, ये आज की बात नहीं है, पिछले कई सालों से। सो इट्स वेरी इजी, कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। बीएस के लोगों के लिए तो नहीं हो सकता। यू नीड जस्ट अ फ्यू मिनट्स। हमने बात की थी कि कुरान में टोटल कितने लफ्ज हैं अप्रोक्सीमेटली, कौन बताएगा? हमने पढ़ा था ना तकरीबन कितने लफ्ज हैं पूरे कुरान में, कितने थाउजेंड? कुछ याद आ रहा है आपको? 6,000। नहीं नहीं, पूरे कुरान में माय डियर। 6,000 तो बहुत कम है। पूरे कुरान में 28,000, याद नहीं आ रहा है? 78,000। डोंट फॉरगेट दिस, 28, दिस इज वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ दिस कोर्स जो आपको कुरान के बारे में बता रहा है। 78,000 अल्फाज हैं कुरान में।
तकरीबन, ठीक है। अब उनमें इसम भी हैं, ऐसे लफ्ज जो नाम या सिफत बताते हैं, उसमें फेल भी हैं जो कोई काम बताते हैं, उसमें हर्फ भी हैं, जैसे उर्दू में होता है ना, ने, को, पर, के लिए, क्योंकि, इस तरह के अरबी में भी होते हैं। तो आप आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे। आज के लेसन में ना हम कुछ इसम के बारे में बात करेंगे ग्रामर में, यानी वो लफ्ज कुरान के जो किसी का, किसी चीज, किसी शख्स, किसी जगह का नाम हो, या सिफत। सिफत में जैसे इंग्लिश में हम एडजेक्टिव एडवर्ब्स पढ़ते हैं, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, किसी की खासियत के बारे में बात करना। तो ये नाम और सिफत दोनों चीजें अरबी में इसम कहलाती हैं। तो ये थोड़ी सी बात तो हम इस पे करेंगे, थोड़ी सी बात हम हर्फ पे करेंगे, फेल के बारे में बात हम थर्सडे को करेंगे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। इसम, इसम के बारे में 4 लेसन्स हमें छोटे छोटे नन्हे नन्हे कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं। लेसन 1 बी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इनका ए पार्ट में हमने इन चारों लेसन्स के ए पार्ट में हमने सूरत अल फातिहा और तावुज़ पढ़ा है अभी, ठीक है। और इन्हीं चारों लेसन्स के बी पार्ट में ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। लेसन 1 बी का एक नन्हा सा टेबल है, लेसन 3 बी का भी एक टेबल है। 1 बी और 3 बी एक जैसे हैं, और लेसन 2 बी और 4 बी इन दोनों में सिर्फ मैस्कुलिन, फेमिनिन और उनके प्लूरल्स बताए हैं। वेरी वेरी सिंपल। लेसन 1 में कौन सा टेबल है आपके सामने है, जब आप किसी के बारे में बात करते हो, वो शख्स, वो सब, तुम, मैं, तुम सब, हम सब, और कोई मेल हो जिसकी, ये सब मुजक्कर हैं, मेल, मेल जेंडर, उसके बारे में बात करेंगे तो आप राइट हैंड से इशारा करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप राइट हैंड से यहाँ इशारा करेंगे, हुआ, वो, हम, वो सब, अंत, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नाहनु, हम। आप में से कौन ये पूरा टेबल सुनाएगा? रेज योर हैंड और टर्न ऑन माइक, जो पहले माइक ऑन कर लो, जल्दी से जल्दी से। यू शुड पार्टिसिपेट ताकि चीजें आपको अभी से याद हो जाएं। आई नो कि ज्यादातर आती हैं। लाइबर रहमान माशाल्लाह, माइक ऑन कर लें जरा, टेबल सुना दें मुझे, इशारे हुआ भी कर। वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नखनू हम सब। वेरी नाइस, वेरी नाइस, माशाल्लाह। तो कितना आसान टेबल था, लाइबा ने सुनाया। बाकी लोग भी रेडी रहें, नेक्स्ट कोई होगा तो आप सुना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो था 1 बी का टेबल, ये पूरा एक लेसन था। सोचो इतनी सी देर लगती है ना। इसी का एक और टेबल है जो उसका भाई है, आप ये समझ लें, वो है लेसन 3 में। वो क्या टेबल है, आइए देखते हैं। ये जो पहले आपने टेबल पढ़ा ना, लाइबा ने सुनाया, उसको कहते हैं डिटैच्ड प्रोनाउन, जमायर मुनफसिला। हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, वो सब, आप, मैं, आप सब, हम। अब अगर इन सब 6 लोगों के पास कोई चीज हो, कोई किताब, कोई मोबाइल, कोई कोई भी चीज, तो वो क्या कहेंगे, उसकी चीज, उन सब की चीज, आपकी चीज, मेरी चीज, आप सबकी चीज, हमारी चीज। तो ऐसे अल्फाज बनाने के लिए अरबी में जो प्रोनाउंस यूज होते हैं उनको अटैच्ड प्रोनाउंस कहते हैं। उर्दू में अगर आपको मुश्किल ना हो तो आप जमायर मुत्तसिला याद कर लें, ना भी याद करें कोई मसला नहीं, असल में आपको टेबल याद करना है, नाम ना भी करें तो आपने करना क्या है, हु, हम, का, ये, कुम, ना, ये 6 लफ्ज करने हैं, और इनको अंडर एस्टिमेट मत करें। अगर आप अल्लाह के लिए इस पे मेहनत करेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि ये कुरान की तकरीबन हर लाइन में आने वाले लफ्ज हैं। तो इसके साथ हम कोई लफ्ज जोड़ लेते हैं, जैसे रब। रब के साथ जोड़ के ये कौन सुनाएगा टेबल, एनी ऑफ यू? मरियम ताहिर माइक ऑन कर लिया, आप बताएं जरा जल्दी से। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। वेरी नाइस, माशाल्लाह, कितना प्यारा पढ़ा है तब मरियम ने अभी। इसी तरह दीन का टेबल आप बना सकते हैं, और ये आप इसमें बातचीत भी कर सकते हैं। मन का मतलब होता है ना कौन, मन रब्बुहु, उसका रब कौन है, रब्बुल्लाह, उसका रब अल्लाह है। सॉरी, मन रब्बुहु रब्बुल्लाह। मन रब्बुहुम, उन सब का रब कौन है, रब्बुहुम अल्लाह, उन सब का रब अल्लाह है। मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मन रब्बुकुम, तुम सब का रब कौन है, रब्बुन अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। तो ये सारी बोलचाल की चीजें जो हैं, ये जब आपको ये टेबल आएंगे ना, जो अभी लाइबा ने और मरियम ने सुनाए हैं, तो ये बोलचाल आपको खुद ही आ जाएगी, ठीक है। माँ दीनू, उसका दीन क्या है, माँ का मतलब क्या, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। और ये किताब, कलम, साथ यानी घड़ी, जवाल यानी मोबाइल, इनके साथ भी आप इस तरह की बातचीत कर सकते हैं। स्माइल कीजिए। आगे हम देखते हैं अगले 2 लेसन्स, 3 बी और 4 बी में आपको क्या बताया जा रहा है। एक तो ये बताया जा रहा है कि जो इसम होते हैं ना, कुरान के वो लफ्ज जो किसी का नाम हो या सिफत हो, वो 2 तरह के हो सकते हैं, या तो आम या फिर खास।
जैसे इंग्लिश में कॉमन नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं, तो यहाँ कॉमन नाउन इसमें से कौन सा है, बताइए जरा इन दोनों में से। एक किताब। किताबुन। एग्जैक्टली, किताबुन। और प्रॉपर नाउन कौन सा है? अल किताब। अल किताबु, वेरी गुड। तो आपने करना क्या है, असल चीज है किताब। अगर आपको अरबी की बुक्स में, कुरान में नजर आए कि उसके आखिर में दो पेश, दो जबर या दो जेर है, तो वो कोई भी किसी भी किताब की बात हो रही है, अ बुक, एनी बुक, ठीक है। लेकिन अगर किताब के शुरू में आपको अलिफ लाम नजर आए, कितनी चीजें होती हैं हम अरबी में पढ़ते हैं अलिफ लाम के साथ आती हैं। अभी हम पढ़ रहे थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमान के साथ भी अलिफ लाम, रहीम के साथ भी अलिफ लाम। तो खास किसी की बात हो रही हो, खास चीज जिसको कहा जा रहा हो, तो उसके लिए अलिफ लाम आता है। लेकिन जब अलिफ लाम आता है तो फिर आखिर में डबल पेश जबर या जेर नहीं होते, सिंगल होते हैं, ठीक है। डबल पेश जबर जेर तब होते हैं जब वो आम इसम हो, और तब फिर शुरू में अलिफ लाम नहीं होता। तो दोनों में से एक ऑप्शन होगा, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल थिंग। और इस लेसन में आपको बताया जा रहा है, ये देखें, मुस्लिमुन आम है, अल मुस्लिमु खास है, इस तरह से ये सारे लिखे हुए हैं। अच्छा, वैसे तो ये मुस्लिमुन है ना, मुमिनुन सालिहुन, लेकिन आसानी के लिए अरब के लोग जब कोई बात मुकम्मल करते हैं ना, तो आखिरी हरकत अक्सर नहीं पढ़ते। जैसे मुस्लिमुन के आखिर में मीम पे दो पेश हैं लेकिन यहाँ नहीं लिखे हुए, हम इसको मुस्लिम पढ़ सकते हैं, मोमिन, सालिह, मुशरिक, मुनाफिक, काफिर, ये पढ़ सकते हैं। तो अरबों का ये स्टाइल है, जब बात मुकम्मल होती है तो आखिरी हरकत को वो ड्रॉप कर देते हैं, सिंपलिसिटी के लिए, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है उसमें, परेशानी नहीं है। लेकिन असल में हरकतें, उन्हें पता है हरकत मौजूद है आखिर में, लेकिन हम ना भी पढ़ें तो कोई मसला नहीं है। अब मैं आपको बता रही हूँ लेसन की इंपॉर्टेंट बात, कौन सा रूल है यहाँ पे। अगर कोई मुसलमान आदमी है, मर्द, मेल, तो उसके लिए अरबी में लिखा जाता है, मुस्लिमुन भी लिखा जा सकता है, मुस्लिमन भी, मुस्लिमिन भी। मीम सीन लाम मीमी है, लेकिन आखिर में दो पेश भी हो सकता है, दो जबर भी, दो जेर भी। जुमलों के मुताबिक कहाँ कहाँ पे कौन सा लगेगा ये हम आगे जाके सीखेंगे, अभी नहीं सीखना। लेकिन तीनों का मतलब है एक मुसलमान आदमी। अब अगर उनकी जमा बतानी हो, ज्यादा मुसलमान आदमियों की बात करनी हो, तो आप आखिर में या तो वाव नून लगा के जमा बनाएंगे या फिर या नून लगा के जमा बनाएंगे। वाव नून आप कब लगाएंगे, बताइए जरा माइक ऑन करके। आपको आइडिया है वाव नून कब लगता है जमा के लिए? जब दो पेश होंगे। जब वाहिद के आखिर में दो पेश होंगे, वेरी गुड। और या नून कब लगता है? जब आखिर में जब दो दो जबर। जबर दो जेर। वेरी गुड, जब आखिर में दो जबर दो जेर होंगे। जितने लोग भी एक्टिव होकर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट, माशाल्लाह। तो मुस्लिमुन से क्या बना, मुस्लिमून, और मुस्लिमन मुस्लिमिन से जमा बनाएंगे, मुस्लिमीन। वेरी वेरी गुड, एंड वेरी वेरी सिंपल एंड इजी। सिर्फ आपने थोड़ा सा समझना है, बीएस के लिए ये कोई हलवा है, बिल्कुल हलवा कहते हैं इजी चीज को, ठीक है। सो आपने इतनी इतनी मुश्किल असाइनमेंट्स की होती हैं, अल्लाह के लिए आप इतनी मेहनत भी नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो थोड़ी सी देर की बात है, चंद मिनट्स में करने का काम है। मिनट्स में हम चैप्टर के चैप्टर किए जा रहे हैं, है ना। तो इसी तरह मुस्लिमुन से मुस्लिमून, फिर मोमिनून, सालिहून, काफिरून, मुशरिकून बनेगा, या मुस्लिमीन, मोमिनीन, सालिहीन, काफिरीन, मुशरिकीन, ठीक है। दो लफ्ज हैं, याद रखें। हल का मतलब क्या होता है, क्या, क्वेश्चन। और भी बहुत से लफ्ज हैं जो क्या के लिए आते हैं। नाम का मतलब होता है जी हाँ, ठीक है, ओके। तो अगर मैं आपसे पूछूं, गौर से जरा देखें, फिर बताएं, हल क्या, हुआ वो मुस्लिम, एक मुसलमान मर्द है, आप जवाब क्या देंगे? नाम हुआ मुस्लिमुन। जी तर्जुमा हाँ क्या वो। होगा? जी हाँ वो एक मुसलमान मर्द है। और अगर मैं कहूं हल हुम मुस्लिमून, क्या वो सब मुसलमान मर्द हैं? नाम हुम मुस्लिमून। जी हाँ वो सब मुसलमान हैं, वेरी गुड, मर्द हैं। मुसलमान मर्द हैं। हल अंत मुस्लिम, क्या आप एक मुसलमान मर्द हो? नाम आना मुस्लिमून। जी हाँ मैं मुसलमान हूँ। बिल्कुल मर्द सही है। नहीं, जी हाँ मुसलमान मर्द हूँ। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तो हम लेसन पढ़ रहे हैं ना। हल तुम मुस्लिमून, क्या आप सब मुसलमान मर्द हो? क्या जवाब होगा? नाम नहनु मुस्लिमून। जी हाँ हम सब मुसलमान मर्द हैं। बिल्कुल सही, माशाल्लाह, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, अल्लाह आपसे राजी हो। इसी तरह आप एक दूसरे से बातचीत करते हुए पूछ सकते हैं, हल क्या, अंता तुम, बिखैर, खैरियत से हो, खैर से हो? तो जवाब क्या देते हैं, नाम जी हाँ, अना मैं, बिखैर खैर से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर मैं आप सारे लोगों से पूछूं, हल क्या अंतुम आप सब बिखैर खैर से हैं, खैरियत से हैं, तो जवाब दीजिए।
نعم نحن نعم بخير نحن بخیر الحمد للہ. वेरी नाइस, वेरी नाइस. आई अप्रिशिएट एवरीवन जो जो जवाब दे रहे हैं. माशाल्लाह. जी हाँ, हम सब खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो हमें इस पे तो ज़्यादा प्राउड फील करना चाहिए. हम इंग्लिश के ऊपर तो बहुत कर रहे होते हैं, ओहो हो फलां का एक्सेंट ठीक नहीं है, उसकी प्रोनाउंसिएशन गलत होगी, हम हंसते हैं. हालांकि क्या, इंग्लिश जुबान ही है ना. इंग्लिश लोगों को भी तो उर्दू सही नहीं आती, उस पर तो कोई नहीं हंसता. हमने खुद अपने आप को बीमार किया हुआ है, मरीज बनाया हुआ है ना, अंग्रेजों का की गुलामी की वजह से. ठीक है, मैं मुखालफत नहीं कर रही, इट्स फाइन. इंग्लिश अब क्या करे, बन गई है ना इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो हमें प्रैक्टिस करनी है, सीखनी है. जुबानों के साथ कोई मुकाबला नहीं है. लेकिन अरबी की वैल्यू किसी और जुबान की नहीं हो सकती, क्योंकि वो कुरान की जुबान है. तो कुरान को बोलने और फील करने और समझने में हमें ज़्यादा स्माइल करनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, ऑनर फील करना चाहिए. ठीक है. अब हम बात करते हैं जी फोर्थ लेसन. आप कह रहे हो कि मोनस की बात ही नहीं मैम कर रही, सारी मर्दों की बात हो रही है ना. तो अब हमारा लेसन आ गया जिसमें फेमिनिन की बात होगी कि उसकी जमा कैसे बनती है. आपने शुरू में टेबल पढ़ा था ना, हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम. उसके आखिर में वो कह रहे हैं एक मोनस भी आप लगा सकते हैं, फिलहाल सिर्फ एक, बाकी आप अगले कोर्सेज में पढ़ेंगे. हिया. हिया का मतलब है वो एक औरत. जैसे हमने राइट हैंड से कहा हुआ वो एक मर्द, लेफ्ट हैंड से हिया वो एक औरत. हुआ को इंग्लिश में क्या कहेंगे, कौन बताएगा? ही. ही. वेरी गुड. और हिया को इंग्लिश में? शी वंडरफुल. आप लोगों को सब आता है मुझे पता है, और आप फिर भी अच्छी सी रिवीजन कर रहे हो. सोचो अल्लाह आपको कितना रिवॉर्ड देगा. मुझे पता है जो पिछली रिवीजन में भी थे आज भी हैं, कितनी बड़ी बात है. हुआ, ही, हिया, शी. इंटरेस्टिंग एंड इजी. ठीक है. तो उसके बाद एक मोनस तो ये हो गया ना, हिया, नंबर वन. नंबर टू मोनस कौन सा है? तीन मोनस की बातें बताऊंगी मैं आपको. अगर तो मैंने आपसे कहा कि मुस्लिमुन, मोमिनुन, सालिहुन, काफिरुन, मुशरिकुन ये सारे मर्द हैं. अगर इनको, ये सारी खवातीन हों, तो मोनस कैसे बनाएंगे? तो अरब लोग कहते हैं एक सिंपल तरीका सीख लें. सबसे पहले मुजक्कर लफ्ज के आखिर में गोल ता आप लगाएंगे तो मोनस बनेगा. जैसे मुस्लिमुन एक मुसलमान मर्द, मुस्लिमातुन एक मुसलमान औरत, मोमिनुन एक ईमान वाला मर्द. मोनस आप बताएं. मोमिनातुन. तर्जुमा भी करें. एक एक, मोमिन औरत. एक ईमान वाली औरत. बिल्कुल सही है. सालिहुन एक नेक मर्द. मोनस करें. सालिहतुन. सारे एक हाथ एक नेक औरत. औरत एक नेक औरत. वेरी गुड. काफिरुन एक इनकार करने वाला मर्द. बताएं. काफिरतुन. एक इनकार करने वाली औरत. वेरी नाइस. मुशरिकुन एक शिर्क करने वाला मर्द. मुशरिकतुन. एक शिरक करने वाली औरत. वंडरफुल. अब आप कहेंगे कि हम जब खवातीन ज्यादा हों तो क्या करना है. तो जैसे आपने मुस्लिम से मुस्लिमून और मुस्लिमीन दो जमा बनाई थी ना, मुजक्कर की जमा करनी हो, मर्द ज्यादा हो, तो आखिर में वाव नून लगता है या या नून लगता है. तो मोनस की जमा कैसे बनेगी, वो ये कह रहे हैं कि जो गोल ता आपने लगाई थी ना मोनस के लिए, उसको आप डिलीट कर दें और गोल ता की जगह पर अलिफ ता लगा दें. क्या करना है, आखिर से, वाहिद के आखिर से गोल ता हटाकर अलिफ और लंबी वाली ता, पूरी ता, गोल ता की जगह पूरी ता लगानी है. तो मुस्लिमतुन एक मुसलमान औरत, जमा क्या बनी? मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन. औरतें. मुसलमान औरतें. मोमिनातुन की जमा मोमिनातुन, सालिहातुन की मोमिनातुन. सालिहातुन, काफिरातुन, मुशरिकातुन. और ये फूल भी बनाया हुआ है मोनस के लिए. ठीक है. ओके. बस एक बात याद रखनी है आपने. आप जैसे आपको बताया था ना मुजक्कर में कि अगर मुजक्कर के आखिर में दो पेश है तो जमा वाव नून से बनाएं, और अगर दो जबर दो जेर है तो जमा या नून से बनाएं. यहाँ आपने पता क्या याद रखना है, अगर मोनस के आखिर में दो पेश है तो जमा के आखिर में भी दो पेश आएगा. ये देखें, दो पेश, दो पेश. मोमिनातुन में दो पेश, मोमिनातुन में भी दो पेश. लेकिन अगर मोनस वाहिद के आखिर में दो जबर या दो जेर है तो जमा के आखिर में दो जेर ही आएगा. दो जबर, मोनस की जमा में दो जबर होती नहीं है आखिर में. ये एक रूल है अरबी का, आपको याद करना पड़ेगा. ठीक है. ठीक है. ये बात किसी को समझ आई है? कोई बताएगा माइक ऑन करके कि मैंने क्या कहा है मुख्तसर. मैम ये दोबारा रिपीट करें प्लीज. मैं रिपीट, कोई और बताना चाहेगा गर्ल्स में से? मैम आपने कहा है कि जब आखिर में लाइबा दो बताएंगी. पेश. जी लाइबा. मैम आपने कहा है जब आखिर में दो पेश होंगे ना, तो जब हम उसका जमा बनाएंगे तो वो आखिर में अलिफ पे और उसकी पेश होगी, मतलब दो पेश ही होंगे. लेकिन जब आखिर में
دو زیر یا دو زبر ہوں گے تو ہم جب جمع بنائیں گے تو دو زیر ہی ہوگا. اور دو زبر کے ساتھ مونس کی جمع بن سکتی ہے؟ دو زبر کے ساتھ نہیں نہیں بن سکتی، تو یہ بات بتائیے میں نے. ٹھیک ہے، بس یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ مونس کی جمع میں کبھی بھی دو زبر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، دو زبر دو زیر دونوں کی جمع دو زیر سے بنتی ہے. کوئی بات نہیں ہے، آئی نو کافی سارے کانسیپٹس ہم دیکھ رہے ہیں نا. جب میں سلائڈس بھیجوں گی آپ ایک ایک سلائڈ پہ غور کر لیجیے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور رائٹ چلیں آگے چلتے ہیں جناب. تیسری بات مونس کی، میں نے آپ کو جو ٹیبل سکھایا تھا نا، ربو اس مرد کا رب، ربو ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. اب وہ کہہ رہے ہیں ایک مونس ایڈ کر دیں، ربو ہا لیفٹ ہینڈ سے. مذکر کا اشارہ رائٹ ہینڈ سے ہوتا ہے، مونس کا لیفٹ سے. ربو ہا اس ایک عورت کا رب. انٹرسٹنگ ہے نا. سو جیسے ابو بکر کی جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ اس سے راضی ہوا، کیا ان سے راضی ہو. عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ ان سے راضی ہو. بات تو ایک ہی ہے لیکن مذکر کے لیے ہوا آ رہا ہے، مونس کے لیے ہا. ان کے ناموں سے آپ یہ یاد رکھ لیں، آپ کو یاد رہے گا. اگر میں کہوں رب ہوں اس ایک مرد کا رب، تو آپ کیا کہیں گے مونس میں؟ ربها. ربها دینہ، دینها دينها کتابہ، کتابها رسولہ، رسول رسولها اسمہ. اسمها اسمها ونڈرفل. تو یہ آپ کو نا بول چال کی چیزیں میں سینڈ کروں گی، آپ ان کو پریکٹس کیجیے گا، بہت مزے کی ہیں کہ آپ اس ایک خاتون کا رب ہے نا، اس ایک خاتون کا رب کون ہے؟ آپ کہیں گے رب اللہ، اللہ ہے. اس کا دین کیا ہے، اس کی کتاب کون سی ہے، اس کا رسول کون ہے، اس کا نام کیا ہے. تو یہ ساری بول چال آپ کو آ بھی جائیں گی، آپ پریکٹس کیجیے گا مسکراتے ہوئے، ٹھیک ہے. تو یہ جی آپ نے پڑھ لیے 4 لیسنز، یہ آپ کے ریوائز ہو گئے. یہ سارے کانسیپٹس آپ کو جلدی جلدی میں دکھا رہی ہوں، یہ سارے آپ نے پڑھے ہیں ابھی. اب ہم نا صرف آپ حروف ایک جیسے حروف ہیں، یعنی سمجھو ایک ہی کانسیپٹ ہے، اور وہ 9 حروف ہیں، ہم ان کو دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن اینڈ ہو جائے گا. سو میرے آفس میں ابھی کلاک میں 4 منٹس ہیں 4 او کلاک ہونے میں، اینڈ آئی بلیو کہ اس سے بہت پہلے ہم اس کو کر لیں گے. سو نو ورریز، ٹھیک ہے. سو انشاءاللہ لیسن 5 سے 7 میں کیا ہے، یہ سب چیزیں تو ہم نے بھی پریکٹس کی تھی. ٹی پی آئی سے پڑھنا ہے، سنیے دیکھیے سوچیے بولیے بتائیے دل سے مل کر. قرآن میں 78,000 الفاظ ہیں تقریباً، ان میں سے وہ اسم بھی ہیں، فعل بھی ہیں، حرف بھی ہیں، یہ بات بھی ہم نے کی تھی. یہ 4 لیسن ابھی ابھی ہم نے ریوائز بھی کر لیے ہیں. 2 ٹیبل، مذکر کے واحد جمع اور مؤنث کے واحد جمع، ہے نا. اتنی سی بات ہے، کتنا آسان ہے یہ. اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ لیسن 5 6 اور 7 میں صرف یہ 9 لفظ یاد کرنے ہیں. جسٹ ٹیل می، ایمان، پورے ایمان کے ان کو سمجھنا ہے، آپ نے یاد کرنا ہے. طریقہ کیا بتایا انہوں نے کہا ایک ان کے معنی یاد کریں. ٹھیک ہے. اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے حروف کا، حروف جو ہے نا وہ ملتے جلتے ہوتے ہیں نا، ان کا میننگ زیادہ سالڈ نہیں ہوتا. تو ان کا ڈر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہو تو میننگ آپس میں مکس ہو جاتے ہیں، سے لیے کو پر مکس ہو جاتے ہیں. آسانی آپ کو انہوں نے یہ دی ہے کہ آپ نا ہر ایک 9 لفظ ہی تو ہیں، تو 9 لفظوں کے ساتھ نا ایک ایک مثال یاد کر لیں. لام سے لی یا لا کے ساتھ الحمدللہ ہی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو معنی لیے بنے گا. من کے لیے یاد کریں اعوذ باللہ من الشیطان، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے. ان کے لیے رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہو ان سے. تو اس طرح آپ کو ان کی مثال سے معنی یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور پھر آپ نے پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو زیادہ اچھے سے یاد ہو. کیونکہ یہ الفاظ نا، یہ جو اٹیچ پروناؤن کا ٹیبل ابھی بھی آپ نے پڑھا ہے، آپ نے بنایا تھا رب ہوں رب ہوں، اس کا رب ان سب کا رب. تو رب کی جگہ آپ یہ سارے حروف لگا کے پریکٹس کر لیں گے تو زیادہ اچھا یاد ہوگا. ٹھیک ہے. لہو لہم اس کے لیے ان سب کے لیے، منہ منہم اس سے ان سب سے، انہو انہم اس سے ان سب سے. یہ جو ان ہوتا ہے یہ بھی سے ہوتا ہے. من والا جو سے ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فرام. ان والا سے جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے بارے میں بات، کسی سے متعلق بات ہو رہی ہے. یہ فرق ہے دونوں سے میں. ٹھیک ہے. جب آپ جملے میں دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. تو اگلے 3 حروف تو دیکھ لیے، اگلے 3 کون سے ہیں؟ بی. اب بی کا میننگ آپ کو مکس ہو سکتا ہے. آپ یاد رکھیں گے کون سی مثال سے؟ بسم اللہ ہی میں بی آیا تھا، آپ کو یاد آ جائے گا اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کے ساتھ. فی اگر آپ کو قرآن میں بھول جائے، آپ کہیں گے اگزامپل ریفرنس جملہ کیا تھا؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں. پھر علا بھول جائے، السلام علیکم، سلامتی ہو آپ سب پر، تو آپ کو پر یاد آ جائے گا، اللہ کا مطلب پر ہوتا ہے. پھر ان تینوں کو آپ اسی ٹیبل سے ملا کے پڑھ لیں.
ठीक है। अच्छा, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, हु, हम, रब्बुहु रब्बुहुम, उसका रब उन सब का रब, तो कई जगहों पे ये भी आया है कुरान में, रब्बिही रब्बिहिम, उसका रब उन सब का रब, मीनिंग सेम है, लेकिन कुछ जगह अरब हु लगाते हैं, हु हम, कुछ जगह ही हिम। इसमें परेशान नहीं होना, ये आपको ना आहिस्ता आहिस्ता खुद अंडरस्टैंड होंगी चीजें, खुद ब खुद आसान लगती जाएंगी। तो कहीं कहीं ही भी आता है, जैसे यहाँ बा के नीचे जेर है तो उन्होंने ही लगाया, फा के नीचे भी जेर है उन्होंने कहा या भी है तो ही जेर लगाएं। अलई, अला, ये अला है ना, ये देखें पीछे जरा, अला, आखिर में या है, उन्होंने इसके नीचे भी जेर लगाया। तो बिही बिहिम, फीही फेहिम, अलैहि अलैहिम का पूरा टेबल आप बना सकते हैं। अभी टाइम शॉर्ट है, आप आराम से प्रैक्टिस कर लें। और आखिरी तीन लफ्ज, छह हो गए ना, सात आठ नौ, ये भी हर्फ हैं, इनकी आसानी के लिए भी आपको उन्होंने तीन आसान जुमले दे दिए जो हम अपनी रूटीन में बोलते हैं। ये कोई ऐसे जुमले भी नहीं है जो हम नहीं बोलते, जैसे हम बोलते हैं ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ही के लिए हैं हम, और हम उसी की तरफ पलटने वाले, लौटने वाले हैं, सबने लौट के वापस जाना है हमें, है ना। तो इलैहि, उसकी तरफ, आपको याद आ गया, इला का मतलब है तरफ। मा, इन अल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह साथ है सब्र करने वालों के। तो मा का मानी क्या हुआ, बताइए जरा। सात। साथ, वेरी गुड। कम रियालन इंदा का, कितने रियाल हैं तुम्हारे पास। तो इंदा का मतलब क्या हुआ, पास। तुम्हारे पास। पास, परफेक्ट। अब इन तीनों को उन्होंने कहा है मिला दें, क्योंकि ये आखिरी टेबल है, इसके बाद हमारा लेसन एंड है, तो वी हैव टाइम। आप में से कौन इलेही का टेबल सुनाएगा, हैंड रेज कर सकते हैं, या जल्दी जो पहले माइक ऑन कर ले। इलेही का सिर्फ सुनाना है, पहला वाला। एनी ऑफ यू, सिस्टर सेहर अब्बासी सुनाएंगी हमें इलेही, इशारे भी और इलैहि तर्जमा भी। इलैहि इसकी तरफ, इलैहिम इन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ, इलैहा इस औरत की तरफ। हाँ, वेरी गुड, माशाल्लाह, अल्लाह आपसे राजी हो। इसकी बजाय अगर आप उस कहें तो ज्यादा अच्छा, उसकी तरफ, उनकी तरफ, इस या इनकी तरफ ना कहें। ठीक है, बहुत अच्छा। माहू का टेबल कौन सुना रहा है, जो पहले माइक ऑन करे, मरियम ताहिर जल्दी से सुनाइए, इशारे मा, बहुत जरूरी हैं। माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, मा का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सब के साथ, माना हमारे साथ, माहा उस औरत के साथ। वेरी नाइस, अल्लाह आपसे बहुत राजी हो, यू आर डूइंग वेरी वेल। अब हमारा फाइनल टेबल कौन सुनाएगा, आइंदा का टेबल, लाइब रहमान जी। इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सब के पास, इंदना हमारे पास, इंदहा इस और उस औरत के पास। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो क्या, किस तरह से इन सब सिस्टर्स ने जो टेबल अभी देखे हैं, नाइन टेबल्स, उनमें इशारे यही थे, जैसे हम कह रहे हैं, इंदा हूँ उसके पास, इंदा हम उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास, और लेफ्ट हैंड से इंदहा उस मुअन्नस के पास। आप सबको इशारे नजर आए हैं मेरे, यस। यस मैम। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज डन। तो जैसे आपने पहले अभी थोड़ी देर पहले हम बोलचाल के जुमले पढ़ रहे थे ना, सवाल जवाब, इस तरह आप इनके जुमले भी बना सकते हैं। नाम हाजा लहू, जी हाँ, ये कोई भी चीज़, ये उसके लिए, हाजा का मतलब होता है ये मैं भी इस पे टाइम नहीं लगा रही, ये एक प्रैक्टिस के लिए होते हैं, तो आप इनको बाद में देख के पढ़ सकते हैं। किसी का मीनिंग आपको ना आ रहा हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, जैसे हल फीही खैर, क्या उसमें भलाई है, नाम फीही खैर, जी हाँ उसमें भलाई है, उसमें कोई खैर है, कोई अच्छी चीज़ है। तो ये सारी चीजें हैं। हल इंदहू कलम, क्या उसके पास कलम है, पेन है, नाम इंदहू कलम, जी हाँ उसके पास पेन है। ये आपको आसान पता है कब लगेंगे, जब आपको ये पीछे वाले नो टेबल आते होंगे। और ये नो टेबल नहीं है, ये नो लफ्ज हैं, टेबल तो एक ही है, हु हुम का ये कुमना, टेबल तो एक ही है। और हाँ, ये मैंने आपको नो टेबल, आप ये मत सोचिएगा ओहो सिस्टर सम्या ने तो आज हमें नो टेबल सिखाए हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हु हुम का एक ही टेबल है, सिर्फ नो लफ्ज, लफ्ज हम बदल बदल के अटैच कर रहे हैं, इतने स्मार्ट हैं हम, है ना। ओके, बस याद रखें कि ये जो नो लफ्ज मैंने आपको हुरूफ के तौर पे सिखाए हैं, आपने करना ये है कि आप इनमें से जो आखिरी थे ना दो, मा साथ और आइंदा पास, ये दोनों इसम है लेकिन हर्फ की तरह काम करते हैं। तो ये आपने बात भूलनी नहीं है, आपके होमवर्क में, क्विज में सवाल कहीं ना कहीं है। आपसे कोई पूछेगा मा इसम है, फेल है, हर्फ है, तो आप कहोगे इसम है। एक्टिंग हर्फ की तरह करता है, होता इसम है, मा और आइंदा दोनों, बाकी सारे हर्फ हैं। ठीक है,
तो ये एक्सेप्शन थी, तो मैंने आपको बता दी। बड़ी सी स्माइल करें, अल्हम्दुलिल्लाह हमने टारगेट अचीव कर लिया। 7 लेसन्स आज जिन्होंने मुकम्मल किए हैं मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ, जो बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे खैर उनको भी हम मुबारकबाद देते हैं। तो आप इससे अपने फ्रेंड्स को पर्सनली शेयर करें। आपकी दोस्ती में एक इंसान क्या क्या कुछ मानता है, तो आप उन्हें कहें कि मैं तुम्हारी दिल से दोस्त हूँ, तो मैं चाहूंगी कि तुम कुरान सीखो, तो मेरे कहने पर तुम 1 घंटा ये रिकॉर्डिंग सुनो, और थर्सडे से पहले सुनो, सो दैट थर्सडे की चीज़ें और सिंपल लगें। और आप हमने यहाँ पे 80 वर्ड्स ऐसे सीखे हैं जो 26,082 टाइम्स कुरान में आए हैं। तो आपका यहाँ बैठना क्या ज़ाया हुआ है? बिल्कुल नहीं। अगर आपको लगता है कि ये बड़ी कामयाबी है, हज़ारों लफ्ज़ का क्लेम आप कर सकते हैं, 26,000 से जायद लफ्ज़। अगर आपको वाकई खुशी है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और बुलंद आवाज में अल्हम्दुलिल्लाह कहें। अल्हम्दुलिल्लाह। 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 अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमसे राजी हो कि हम अल्लाह की मोहब्बत में यहाँ आए हैं, कोई और बात नहीं थी। अल्लाह की मोहब्बत के लिए हम सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। अल्लाह ने हमें चूज किया है। इतने लोग और कामों में बिजी हैं, लेकिन अल्लाह को पसंद है कि हम अल्लाह की बात करें। तो अल्लाह का इसके लिए भी अल्लाह को थैंक्स कहना चाहिए। अभी तक जिन लोगों के साथ कम्युनिकेशन मेरी नहीं है, उनको चाहिए कम से कम मुझे अपना नाम, अपना कॉलेज नेम ज़रूर भेजें। आपके पास मेरा नंबर मौजूद है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ओके, अपना बहुत ख्याल रखें, कांटेक्ट में रहें और सिलसिला जारी रखें। दूसरों को, ये जो 15 मेंबर्स हैं, ये 1500 को कलेक्ट इकट्ठे कर सकते हैं। इसीलिए हम दुनिया में आए हैं, लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ लाने के लिए। सो रिकॉर्डिंग के थ्रू आप इनको बुलाएंगे इंशाल्लाह। आज कोशिश करती हूँ, वरना कल तक ज़रूर रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी। ठीक है, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू। इज देयर एनी क्वेश्चन, एनीथिंग टू नो मैम। डिस्कस? मैम कोई संडे को लेंगी? जी माय डियर, मेरा इरादा यही है। पता है, हम बहुत डिले हो रहा है। हम डिले इसलिए कर रहे हैं कि हमारी शायद कोई 2 गर्ल्स, 10 गर्ल्स और शामिल हो जाएं, हम उनको टाइम दे रहे हैं। बट मुझे पता है जो काम कर चुके हैं वो इंतजार में हैं। तो मेरा ख्याल है संडे को तो कर ही लेना चाहिए। क्या ख्याल है? इतने इससे ज़्यादा डिले तो नहीं करना चाहिए। ठीक है मैम। ओके। संडे को यही 2-3 बजे का टाइम, 2 से 4 का टाइम रख लेंगे या 3 से 5 का रख लेंगे, क्योंकि वो क्विज होमवर्क जैसा होगा। एक तो उसमें क्वेश्चन अगर होमवर्क में 15-20 होते हैं, उसमें शायद 40-50 हो बस। होंगे एमसीक्यूज, वेरी सिंपल। उसका फर्क ये होगा कि एक तो वो ओपन बुक नहीं होता, दूसरा ये है कि वो आपने 2 ही घंटे में करना होगा। 3 से 5 के अलावा कोई नहीं कर सकेगा। किसी की कोई जेन्युइन रीजन है, वो मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट करेगा कि हम इस दिन अवेलेबल नहीं है, हमें आप किसी और दिन सेंड कर दें, वो मेरे साथ अपना नया टाइम सेट कर सकता है। लेकिन बाकी सब के लिए, जैसे एग्जाम का एक टाइम होता है ना, आप सब ने कोशिशें करनी है उसी टाइम दें ताकि जल्दी कवर हो। तो वो 2 घंटे में ही क्विज होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। मैम मैम ओरल क्विज का सारी स्लाइड्स जो आपने पढ़ाई है ये आप ग्रुप में सेंड कर देंगे? ये मैं शेयर कर दूंगी स्लाइड्स, तो आई विल ट्राई कि मैं आज ही कर दूं। रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड होने में ना टाइम बहुत लेती है। हो सकता है रिकॉर्डिंग भी आज आ जाए, वरना रिकॉर्डिंग तो कल तक आ जाएगी, स्लाइड्स आज आ जाएंगी। ठीक है, आप उनको रिवाइज कर लें। थैंक यू स्वीट हार्ट, थैंक यू। एनी ऑफ यू कोई बात आप करना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। मैम क्विज ओरल होगा हमारा? माय डियर, जैसे आपने ऑनलाइन होमवर्क किया है कोई अभी तक? नो मैम, मैंने आज नहीं किया? फर्स्ट हाँ, क्लास इसलिए में आपको किया। आइडिया नहीं है। मैंने ग्रुप में ना, मैं आपको जब ये स्लाइड्स भेजूंगी ना, तो मैं पिछले 2 होमवर्क भी भेज दूंगी। तो जिसने नहीं किए वो अटेम्प्ट कर ले। ठीक है, आपको होमवर्क करने से पता चल जाएगा, क्विज बिल्कुल वैसा है। होमवर्क बहुत सिंपल है, आप सारा स्लाइड्स में से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो क्विज भी वैसा है, एमसीक्यूज की फॉर्म में होता है ऑनलाइन। आप जब ओपन करते हैं, अपना नाम लिखते हैं, नीचे क्वेश्चन आ जाते हैं, हर क्वेश्चन के आगे 4 ऑप्शंस होती हैं, सही वाले को आपने टिक करना होता है, बस इतना आसान है। और जहां कोई ओके मैम। मुश्किल आए, आप मुझसे बात कर सकते हैं कि मैम ये क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं आ रहा, आई विल गाइड यू। होमवर्क तो है ही ओपन बुक, वो आप एक दूसरे से पूछ के भी कर सकते हैं। क्विज पूछ के नहीं करना होता, होमवर्क तो पूछ के भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके आई मैम। होप इट्स क्लियर। थैंक यू माय डियर सहर। माशाल्लाह, और लोगों को भी मोटिवेट करें। अगर आप लोग ये रिकॉर्डिंग भी जो सुन लेंगे ना डेडिकेशन से, मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे, होमवर्क्स अपने कर लेंगे, तो भी हम उनको अपने कोर्स में शामिल कर लेंगे। सो आई वांट हमारी रिजल्ट सेरेमनी में ज़्यादा लोगों को सर्टिफिकेट मिले, हम ज़्यादा लोगों को कुरान टीम में शामिल करें। है ना, कितनी अच्छी बात है। चलें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो जाना चाहिए। मैं आज अभी MCG G104 कॉलेज गई हुई थी, फिर आई हूँ। छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी क्लास थी, तो मैं थोड़ा सा थक गई हूँ अब। इसलिए गई हूँ कि थोड़ा सा
उठती हूँ, ज़रा पानी वानी पीती हूँ, नमाज का भी टाइम हो रहा है, इंशाल्लाह होने को है। ठीक है, तो फिर जल्दी मुलाकात होती है इंशाल्लाह परसों। अपना ख्याल रखें, और कोई भी मुश्किल कंफ्यूजन हो तो व्हाट्सएप पे बात करें। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू, थैंक यू। जीते रहें, सलामत रहें, खुश रहें। टेक केयर।